एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रत्न समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद सरमखंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछै पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता में ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम बसै मन माहे तिथै भगत वसै के लो करੈ आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। राम रस पिया रे राम रस पिया रे जेह रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे राम रस पिया रे जेह रस बिसर रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे राम रस पिया रे जे रस बिसर गए रस और जे रस बिसर गए रस और राम रस पिया रे। रे मन तेरो कोई नहीं रे मन तेरो कोई नहीं किंच ले जिन पार किंच ले जिन पार बिरख बसेरो पंख को बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार तैसो ए संसार तैसो राम रस पिया रे राम रस पिया रे
कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। कहूँ बेदबानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ बेदबानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ बेदबानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ बेदबानी, कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द
अकाल उस्तत में दर्ज है। अकाल उस्तत नाम से ही पता चल जाता क्या है, उस अकाल पुरख के उस्तत। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकाल पुरख, अकाल जो काल में नहीं है, एक ओंकार। ये सारी उस्तत गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नाम अलग अलग लिए हैं, पर उस्तत उस एक ओंकार की कर रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कह रहे हैं? कहूँ गीत के गवैया, कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया, कहूँ नर को आकार हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस्तत कर रहे हैं उस निरंकार के, एक ओंकार के, अकाल के गीता का उच्चारण करने वाला भी तो, बांसुरी बजाने वाला भी तो, नाचने वाला भी तू, नचाने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू ही तू, एक ओंकार। कमाल का पहलू है ना। कहूं वेद बानी, वेदों का उच्चारण करने वाला, वेदों का रचयिता, वेदों को लिखने वाला भी तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूं कोक की कहानी, इन वेदों शास्त्रों में जो काम का भेद बताया है वो भी तू ही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गहरे भेद बताने वाला तू। कहूँ राजा, कहूँ रानी, इस संसार में जितने राजा हैं वो भी तू, रानियां भी तू। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहूँ नर को आकार, नर को प्रकार हो, अलग अलग जितने भी सृष्टि पर दिखाई दे रहे हैं सब में तू ही है, तू ही तू, तू ही तू। तू ही तू, 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 तू ही तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहूँ बेन के बजैया, कहूँ तेन के चरैया, कहूँ लाख ने लवैया, कहूँ सुंदर कुमार हो, एक एक पंक्ति में तू ही तू। बांसुरी बजाने वाला भी तू, गाय चराने वाला भी तू। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल का पहलू है इस अकाल उस्तत में, ये इतना बड़ा शब्द है, इतनी उस्तत की गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की लिव जुड़ गई अकाल पुरख के उस्तत में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचना ही देखेंगे ना साथ संगत जी, जाप साहब जी ले लीजिए, केवल अकाल के उस्तत, और हर उस्तत में अलग अलग नाम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की रचना इतनी कमाल की है कि बड़े से बड़े कवि देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी गहरी कविताएं, इतने गहरे चालें, भुजंग पर्यात छंद, यानी कि सर्प कैसे चलता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसकी जैसी चालों में बनाई हुई कविता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी ये रचना, इशारा एक ही है, एक ओंकार, कि सब कुछ तू है। हे वाहिगुरु, राजा भी तू, भिखारी भी तू, देने वाला भी तू, लेने वाला भी तू। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो। कमाल के पहलू है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं जो दिखाई नहीं देता वो तू है, तेरा कोई रूप नहीं, तेरा कोई रंग नहीं, निर्जुर निरूप, पर आगे कहते हैं सुंदर स्वरूप हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि तेरा रूप निर्जुर है, दिखाई नहीं देता, रूप न रेख न रंग किछ तरह गुनते प्रभ
पिन, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुंदर स्वरूप हो, कि तेरा स्वरूप अत का सुंदर है। कहने का भाव तो निराकार भी है और आकार भी है, साकार भी, तो निरंकार भी है और दृष्टमान भी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके ऊपर बड़ा भेद है, बड़ा भेद। कई लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देता, कई कहते हैं दिखाई देता है। बाबा नंद सिंह जी किसी ने सवाल किया, दिखाई देता है कि नहीं देता? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे गलत कोई भी नहीं है। जिसे नहीं दिखाई देता वो कहता है नहीं दिखाई देता, जिसे दिखाई देता है वो कहता है दिखाई देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन्य ने पत्थर में से प्रकट कर लिया, लोग कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे नहीं, धन्य के पत्थर में से भगवान नहीं प्रकट हुए थे, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जैसी भावना तैसा फल। निर्जुर निरूप हूं कि सुंदर स्वरूप हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बार बार हर पंक्ति में उस निरंकार के उस्तत कह रहे हैं कि सब कुछ तू ही है। जो गुरु नानक पातशाह का पहला उपदेश है वही ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। पहला उपदेश क्या है? एक ओंकार, एक वो एक ही है, वो दो नहीं है। नाम चाहे करोड़ों हैं, उसके अरबों हैं, अनगिनत है, पर उसका कोई नाम नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो एक ही है जिसका कोई नाम नहीं, और वो एक ही है जिसके अनगिनत नाम है। और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार को प्रकार हो। वेद की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जय। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री जाप साहिब जी में उस्तत कर रहे हैं अकाल पुरख वाहिगुरु के। चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जय, जिसका कोई चिन्ह नहीं, कोई चक्र नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई जात नहीं, कोई गोत नहीं, कोई किसी प्रकार का जिसका कोई मानो ये कह लीजिए किसी का कोई सबूत नहीं कि वो है। पर दूसरी तरफ कहते हैं कि तू है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, पर आकार भी है। बिना कानों के वो सुनता है, बिना आंखों के वो देखता है, बिना मुख के वो बोलता है। वो कौन? एक ओंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जाए। अचल मूरत, जिसे चलने की जरूरत नहीं, अचल है पर हर जगह मौजूद है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अनुभव प्रकाश, जिसके प्रकाश के जैसा कोई प्रकाश नहीं। अमितोज कही जाए, जिसकी शक्ति के जैसी कोई शक्ति नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अमिट अमिट शक्ति को कहा है अमितोज। सारा जाप साहिब जी पढ़ लीजिए साथ संगत जी, एक एक अक्षर अकाल की उस्तत, अकाल मूरत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन है वो? एक ओंकार।
एक, कि सब कुछ तू ही है। बार बार एक ओंकार की बात आती है साथ संगत जी, प्रकरण ही चल रहा है एक ओंकार, कि वो एक है। ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट अगर हो गया ना साथ संगत जी, अगर एक प्रकट हो गया, दास ने कल भी कहा था, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमारे भीतर ज्ञान भर दे, मन मान जाए इन पंक्तियों पर, दुविधा खत्म हो जाए, द्वैत खत्म हो जाए। जब तक द्वैत है तब तक दुख है, द्वैत खत्म, अद्वैत आ गया, दुख खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी, कहूँ नार के प्रकार हो। कहूँ कोक की कहानी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत पर पहुंचे, सिद्ध देखकर हैरान हुए कि यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता, आप कैसे आ गए। ये सारी घटना भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में अंकित की है, श्रवण कीजिए, क्योंकि कथा चल रही है एक ओंकार। अब यहाँ से सही मायने में एक ओंकार की कथा की शुरुआत होने जा रही है। अब तक जो हमने सुना वो सारी भूमिका थी। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह और सिद्धों के बीच में जो गोष्ठ हुई है साथ में, कमाल की है। वो जो क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं उनमें जो सिद्धों ने सवाल पूछे और गुरु नानक पातशाह ने जो गहरे जवाब दिए, उसके लिए हमें भी गहराई में जाना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसको समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु नानक मेहर करे, हमें ये ज्ञान हमारे भीतर, ये जो गुरु नानक पातशाह देना चाहते हैं, हमें समझ में आ जाए। वो सर पे हाथ रख के सेवा ले। दास एक बेनती फिर करेगा, जो 3:45 से 4 बजे तक श्री जपजी साहिब जी के पाठ होते हैं, उसमें जरूर हाजिरी भरी अमृत वेले साथ में, क्योंकि ये वाणी को समझने के लिए अरदास करके, पाठ करके श्री जपजी साहिब जी का सब अरदास करके फिर शुरू करें ये कीर्तन। सुनना, दास करना और आप सुनना, क्योंकि ये जो अभी अर्थ आगे आने उसमें व्याकरण भी है, उसमें ऐसे ऐसे भाव हैं, सुनकर मन हिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, मुझसे ये अर्थ कराने की सेवा ली और आप सबको
इस अर्थ को समझने की शक्ति दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अर्थ को समझने की शक्ति का मतलब पता है क्या है? सही मायने में अर्थ समझ में आ जाए, क्योंकि हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर किसी ने इसको नेगेटिवली ले लिया तो वो परेशान हो जाएगा, और किसी ने पॉजिटिवली ले लिया तो उसका मन आनंद से भर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अर्थ ही इतने गहरे हैं, गहरों के साथ साथ विचित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले ये जो घटना हुई है भाई गुरदास जी से प्रमाणित करते हैं अपने बारे में, उसे श्रवण कीजिए। बाबे डिठी पृथ्वी नवे खंड जिथे तक आही, फिर जाए चढ़िया सुमेर पर, सिद्ध मंडली दृष्टि आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मूल मंत्र का ज्ञान परमेश्वर से लेकर गुरु नानक पातशाह ने आंखें बंद करके बैठे तो देखा सारी पृथ्वी की तरफ आग लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाली पृथ्वी की तरफ नहीं देखा, 9 खंडों में देखा। और यहाँ पर जिस सुमेर पर्वत की बात हो रही है साथ संगत जी, वो इस धरती पर है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जिस सुमेर पर्वत की बात यहाँ पर हो रही है वो इस धरती की बात नहीं हो रही, दूसरी धरती की बात हो रही है, जहाँ पर ये सिद्ध बैठे, जहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता इस धरती का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी के साथ, भाई बालाजी के साथ वहां पहुंचे, सिद्ध देखकर हैरान हो गए कि यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, आप कैसे आ गए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे सिद्ध गोरखनाथ के चेले थे। गोरखनाथ बहुत बड़ा सिद्ध हुआ है साथ संगत जी। उसके चेले इस पृथ्वी पर भी, उसके चेले दूसरी कई पृथ्वियों पर भी। अब ये बात बताओ किसे हजम होगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर आगे आगे जैसे सुनते जाएंगे बात समझ में आती जाएगी। जो तर्क वाले लोग हैं वो कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, पर हर चीज का यहाँ पर ब्यौरा है। मैं कोई बात अपने मन से नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। 84 सिद्ध गोरखा मन अंदर गिनती वरताए, सिद्ध बोलन सुन बालिया कौन सकत तोहे इथे ले आए। हो कौन सकत तोहे इथे ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर समझने की बात है, अगर तो ये पहाड़ इस पृथ्वी पर होता, सुमेर पर्वत, तो सीधे ये ना पूछते कौन सी शक्ति से यहाँ पर आ गए आप, कौन सी शक्ति है आपके पास जो यहाँ पहुंच गए। क्योंकि पहाड़ों पर तो अगर सिद्ध पहुंच सकते हैं तो दूसरा भी कोई पहुंच सकता है। पर यहाँ पे सवाल पूछा है सिद्धों ने कि इसी पहाड़ पर आप कैसे आ गए, यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं सकता, आपके पास कौन सी शक्ति है? गुरु नानक पातशाह को बालक कह के बुलाया, यहाँ पर बालक कह के। ये बालक क्योंकि सिद्धों की आयु 400, 400, 500 साल, हजार साल यहाँ पर लिखी हुई है इतिहास में। श्वास ऊपर चढ़ा लेते थे और अपनी आयु बढ़ा लेते थे, क्योंकि जो जीवन मिला है वो सालों, महीनों, हफ्तों, दिनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से भी नहीं, मिनटों, सेकंडों के हिसाब से भी नहीं। जीवन मिला हुआ हर एक को श्वासों के हिसाब से मिला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं ना अंतिम श्वास ले रहा है, कहते हैं ना इसके श्वास खत्म हो गए। जब कोई मर जाता है श्वास गिनकर मिले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मर्जी हमने कहाँ खर्च करनी है। दास ने कई बार ये पहलू बताया है। सबसे ज्यादा श्वास खर्च होते हैं काम वासना भोगते वक्त, उससे कम सोते वक्त, उससे कम काम करते वक्त, और सबसे कम खर्च होते हैं नाम जपते वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हमारी मर्जी हमने श्वास कहाँ खर्च करनी है। हमें पूंजी मिल गई है,
मर्जी हमारी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सिद्ध अपने श्वास चढ़ा लेते थे। इसका भी प्रूफ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज भी कई सिद्ध गुफाओं में बैठे हैं, कई कई 100 सालों से साथ संगत जी हिमालयाज में। आज भी हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि हम जब हेमकुंड साहब के पहाड़ों की दूसरी तरफ गए, बाबा महार नाम सिंह जी अपने जीवन में लिखते हैं कि जब हेमकुंड साहब के पहाड़ों की दूसरी तरफ गए तो वहां पर ऐसे ऐसे सिख मिले हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय से बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हुक्म से बैठे हैं कि जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल की बात है साथ संगत जी। विश्वास। 2-3 दिन पहले भी दास ने यही बात की थी। हम साइंस पर विश्वास कर लेते हैं पर संत पर नहीं। पर जहां पर साइंस खत्म होती है, संत की बात तो वहां से शुरू होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध पुछण सुन बालिया, कौन सकत तोहे एथे ले आई। हो जपया परमेश्वरो, पाओ भगत संग ताड़ी लाई। मेरे गुरु नानक पातशाह जवाब देते हैं, हमने तो केवल उस एक परमेश्वर की आराधना की है। उसने शक्ति दी है मूल मंत्र की। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। निरंकार के हुक्म से पहुंचे हैं, सृष्टि के मालिक के हुक्म से कि सिद्ध भटक गए हैं, उन्हें जाके रास्ता दिखाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब किसी से ये कहा जाए, कोई ज्ञानी ध्यानी हो, तू भटका हुआ है, क्रोध तो आएगा ही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी ज्ञानी से जाकर को, एक बालक जाकर एक बुजुर्ग से कहे कि आप भटके हुए हैं, तो बुजुर्ग को गुस्सा तो आएगा ही। 500 600 साल की आयु उनकी, और गुरु नानक पातशाह छोटी आयु के कह रहे हैं कि आप भटके हुए हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना इतना जीवन आपने लगा दिया हठ में, जप में, तप में, पर प्राप्त क्या हुआ? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए आगे। आखण सिद्ध सुन बालिया, अपना ना तुम देहो बताई। बाबा आखे नाथ जी, नानक नाम जपे गत पाई। नीच कहाए ऊंच कर आए। सिद्ध पूछते हैं, गोरखनाथ जी पूछते हैं गुरु नानक पातशाह से भी, तेरा नाम क्या है? कहते हैं मेरा नाम नानक है। और नाम की शक्ति से यहाँ पर आया। नीच कहाए ऊंच घर आए, ये बहुत कीमती पंक्ति है आखिरी। नीच कहाए ऊंच घर आए। अपने आप को जितना नीच सदाओगे, परमेश्वर उतना ऊंचा उठा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो सबका सत्कार करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं दिखाई देता किसी में। सच कहता है दास, मुझे फर्क लगता ही नहीं कोई अवतार में, किसी अवतार में। पर एक बात बार बार दिमाग में आती, गुरु नानक पातशाह की निम्रता इस रूप में, जब अवतार धारा गुरु नानक निरंकार ने गुरु नानक के रूप में, तो सबसे ज्यादा विनम्रता इस रूप में, इस गुरु नानक पातशाह के रूप में ही प्रकट हुई है। चाहे कितने भी इतिहास पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लो, किसी भी धर्म ग्रंथ को, गुरु नानक पातशाह ने जितनी विनम्रता से वाणी लिखी है, अपने आप को नीच कहा है,
नानक नीच का है विचार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें जीने का सलीका ढंग बताया है। अपने आप को कुकर खवाया है, भूतना खवाया, बेताला खवाया है। गुरु नानक पातशाह ने अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो हम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसलिए बोलने पड़ते हैं क्योंकि वाणी में दर्ज है और उनका हुक्म है पढ़ो। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह सिद्धों को पहली पंक्ति में ही उपदेश दे दिया कि नीच कहाए ऊंच घर आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द भी है ना वाणी का, बड़ा प्यारा है। मन ज्यों अपने प्रभु भावों, क्या करूं मैं कि अपने प्रभु को अच्छा लगूं। तो आगे जवाब भी खुद देते हैं, नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नीच होते हैं उनसे भी नीच, उनके भी नीच के नौकर। नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बुलाऊं। उनके जो नौकर हैं उनसे वो भी मुझे गरीब कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नीचा हो जा, अपने मन को इतना नीचा ले जा कि मैं कुछ भी नहीं, सब मुझसे अच्छे, तब जाके तू प्रभु को भाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हमारी बुद्धि उल्टी। वाणी कहती है मन में ये विचार होना चाहिए, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। हम कहते हमसे अच्छा कोई नहीं। मुंह से चाहे मैं कहता रहूं कि मैं नीच, मैं निमाना, भीतर चलता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भीतर ये जो चलता है ना, ये प्रॉब्लम जो भीतर की है, जो दिखाई नहीं देती, कौन दूर कर सकता है? जो दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जैसे जैसे मूल मंत्र जपते जाएंगे, जैसे जैसे मूल मंत्र जपते जाएंगे, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये भीतर जाता जाएगा, विनम्रता जाती जाएगी अंदर भीतर मूल मंत्र के साथ। क्यों? क्योंकि ये मूल मंत्र गुरु नानक के गुण है, निरंकार के गुण है। जो गुण निरंकार के जपने वाले के भीतर वो गुण प्रकट हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी संगत करो उसकी रंगत हो जाती है। बुरे आदमी के साथ बैठो गालियां आ जाएंगी, महापुरुषों के साथ बैठो सिमरन आ जाएगा, नाम जपना आ जाएगा। और जिसका नाम जप रहे हैं, ये उसकी संगत कर रहे हैं निरंकार की, तो निरंकार के गुण प्रकट हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ यहाँ पर फिर से मूल मंत्र ले लेते हैं जो रोज पढ़ते हैं, कितना रस आता है। फिर साथ साथ में विचार आगे बढ़ाएंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, ये घटना शुरू कहाँ से हुई? ये सारी घटना गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी भाई लैना जी को गुरुगद्दी देने के बाद सुना रहे हैं गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो घटना अभी हम सुन रहे हैं भाई गुरदास जी ने लिखी है। इस घटना को गुरु नानक पातशाह ने अपने मुखारबिंद से गुरु अंगद देव जी महाराज को सुनाया। वो कब, ये घटना कैसे वापरी, इसके पीछे भी एक घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध पहाड़ों से नीचे उतरे, गुरु नानक पातशाह के बारे में हर सिद्ध ने सुन रखा था। अब ये सुना कि गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक गुरुगद्दी पर विराजमान है, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सारे सिद्ध इकट्ठे होकर आ गए चर्चा करने के लिए, ज्ञान चर्चा देखने के लिए कि जो गद्दी पर बैठे हैं उन्हें कितना ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई आते रहते थे। गुरु अमरदास जी के समय, गुरु रामदास जी के समय ऐसी कई घटनाएं ऐसे दाकर सवाल करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों ने सवाल किया भाई लैना जी से, गुरु अंगद देव जी महाराज से, कि आपका माला मंत्र कौन सा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माला मंत्र
एक ओंकार तो हो गया बीज मंत्र, वाहिगुरु हो गया गुर मंत्र, मूल मंत्र, अब माला मंत्र। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज यहाँ पर चुप कर गए। कहने लगे सिद्धू, इस सवाल का जवाब मैं गुरु नानक पातशाह से पूछ कर दूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक पातशाह के पास आए, माथा टेका, चरणों में बैठे और सवाल किया। सिद्धू ने मुझसे ये सवाल किया है कि हमारी सिक्खी में माला मंत्र कौन सा है। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, माला मंत्र है श्री जपजी साहेब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जप बाणी, जप, इसका नाम दास ने पहले भी कहा, गुरु नानक पातशाह ने इसका नाम रखा था जप। श्री साहिब और जी हम श्रद्धा से सत्कार से लगाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये श्री जपजी साहिब जी की वाणी का उच्चारण हमने सुमेर पर्वत पर किया था। सिद्धों ने सवाल किया, उस हिसाब से जवाब दिया ये वाणी से, इस वाणी के आधार पर। और ये श्री जपजी साहिब जी की वाणी जब उच्चारण की सवालों के हिसाब से, तो ये बेतरतीब पड़ी हुई है। इसकी पौड़ियों की तरतीब करनी बाकी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पौड़ियों की तरतीब कहने का भाव, सुने की पौड़ियां पहले आएंगी, मरने की बाद में आएंगी। ये जो सीरियल वाइज बनी है पौड़ियां, उसकी तरतीब बाकी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी के साथ बैठकर इन पौड़ियों की तरतीब की और एक एक अर्थ गुरु अंगद देव जी महाराज को बताया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अर्थ कैसे बताया? घटना सुनाकर, कब सिद्धों ने कौन सा सवाल किया और कब गुरु नानक पातशाह ने उसका जवाब दिया, और उस वक्त कौन से सवाल पे कौन सी पौड़ी का उच्चारण किया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस वाणी की तरतीब करने के बाद श्री जपजी साहिब जी की वाणी, जिसके अर्थ गुरु साहिब जी हमसे लेने वाले हैं, ये सेवा लेने वाले हैं सुनने की और करने की, इस वाणी को तरतीब में करने के बाद पहली बार जब इसकी रचना संपूर्ण हुई, श्लोक लगाया गया, पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत, सारी वाणी कंप्लीट करने के बाद गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी की झोली में डाली और कहा, इस वाणी को इतने वर दिए साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह ने कहने लगे गुरु अंगद देव जी महाराज से, संगत से कह देना कि ये हमारे वचन है संगत से, कि जो ये वाणी पढ़ेगा उसे क्या क्या प्राप्त होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। अर्थ विचार करे उर्माही, अर्थ विचार करे उर्माही, उर्माही उर्माही, अर्थ विचार करे उर्माही, मुक्त होए सो संशय नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह वर दे रहे हैं श्री जपजी साहिब जी की वाणी को, कि जो इसके अर्थ का विचार करेगा, जो सेवा हम सबसे गुरु साहिब जी अब लेने वाले हैं, इसका फल सुन लीजिए, कि जो इनके अर्थों को विचार करेगा। सुनना क्या होता है? विचार करना ही होता है। बोलना क्या होता है? अर्थों का विचार करना। जो इन अर्थों को विचार करेगा, अपने भीतर भी इन अर्थों को विचार करेगा, मुक्त होए संशय ही नहीं, वो जीवन मुक्त हो जाएंगे। इस पे डाउट मत करना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह वर दे रहे हैं कि जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। जो वाणी को, श्री जपजी साहिब जी के वाणी को विचारेगा अपने भीतर, और इस बात पे संशय मत करना, कोई संदेह मत करना। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। आगे, जप जी सेवन प्रीत सो जान, जप जी सेवन प्रीत सुजाहि, मम समीप प्राप्त होए ताहि। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रीत से पढ़ेगा, प्रेम से पढ़ेगा, मम समीप प्राप्त होए ताहि, मैं हमेशा उसके पास रहूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या चाहिए साथ में? जिस वाणी को पढ़ने से गुरु नानक पातशाह साथ रहे, भीतर रहे, जिसके साथ गुरु नानक हो जाए, किस बात का डर? जिसके साथ गुरु नानक हो जाए वो हार कैसे सकता है किसी भी जगह पर? जिसके साथ गुरु नानक हो जाए उसका मन दुखी कैसे हो सकता है? आज हम दुखी हैं, डरे हुए हैं, इसका भाव एक ही है, गुरु नानक साथ में नहीं। और गुरु नानक साथ में नहीं, इसका भाव एक ही है, वाणी पढ़ तो रहे हैं, प्रेम से नहीं पढ़ रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी कमी ढूंढनी चाहिए। हम कमियां ढूंढते हैं वाणी में। पढ़ तो ले भाई साहब, इतना पाठ करते हैं, कुछ हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे पढ़ते हैं भाई? बातें करते हुए, बिना सुचमता के, काम खत्म करने के लिए, जैसे बोझ पड़ा हो पाठ करें खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी आप सब में शामिल हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ये सब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर जब दास बात करता है, अपनी भी करते हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। पर हमें समझना होगा, अगर कुछ पाना है, अपने दुख खत्म करने हैं, तो वाणी को पढ़ना है प्रेम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह एक एक वर दे रहे हैं, एक एक वर। यहाँ पर फिर से वो महापुरुषों की बात याद आ गई। बाबा हरभजन सिंह जी, उनके अंतिम वचन, हॉस्पिटल में आईसीयू में मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर भी बोल रहे हैं अंतिम वचन के एक बेनती है सारी संगत से, श्री जपजी साहिब जी का एक पाठ दिन में कम से कम पूरी प्रेम से पढ़ना चाहिए। 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे पौना घंटा, एक पाठ प्रेम से पढ़ना। ये उनके अंतिम वचन कितने खास होंगे, कितना जरूरी होगा, ये विचार करने वाली बात है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप जी कंठ निता प्रति रटे। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जप जी कंठ निता प्रति रटे, जप जी कंठ निता प्रति कटे रटे, जप जी कंठ निता प्रति रटे, जन्म जन्म के कलमल कटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करेगा, कंठ याद करेगा, पढ़ेगा नहीं। यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं की, यहाँ पर कंठ करने की बात की है। एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना। जप जी कंठ निता प्रति रटे। भाई लखू ने क्या किया था? 2-3 दिन पहले हमने घटना सुनी। उनके घर में ही चरण डालेंगे, उनके घर में ही जाएंगे भोजन खाने, जिनके माताओं को, बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ होगी। और उस बालक ने श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ की, उस वाणी के सदके उसकी उम्र 90 साल हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी आयु 14 साल में समाप्त हो रही थी। इस वाणी की ताकत को पहचाने। वो श्री जपजी साहिब जी की वाणी जिसे बैठकर पढ़ा गया तो 5000 लोगों का लंगर 25,000 लोगों में बट गया, पर लंगर खत्म नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी भाई लखू ने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा, तो ईंटें कच्ची हो गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने वचन पीछे ले लिए, क्योंकि ये सिख 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के अमृत ले उठकर एक चौकड़ी पर बैठकर करता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी की ताकत कि जो श्री जपजी साहिब जी की बाणी को कंठ करेगा और निता प्रति यानी कि नित नेम से उसे करेगा, नित नेम से रटे। यहाँ पे रटने की बात है। रटना किसे कहते हैं? बच्चों को याद कराते हैं ना। आज तो समझ रहे हैं, पहले रटाते हैं फिर समझ में आता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। रट वही सकता है जो जिसने कंठ की हो, बिना देखे बोलना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म के कलमल कटे, जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे जो श्री जपजी साहिब जी के बाणी को कंठ करके रोज पढ़ेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्यास से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त इतने सारे ख्याल, इतने सारे बातें दिमाग में चल रही हैं, मन करता है सारी बता दो। समाप्ति करने का दिल नहीं करता, पर समा हो जाता है। मन तो करता है ये प्रकरण रोज 4-5 घंटे होना चाहिए, पर सेवादार समझाते हैं कि नहीं। गुरु घर के सेवादार जो सारी टीम है कहते हैं भाई साहब 2 घंटे से ज्यादा मत किया करो, संगत थक जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। असल में मुझे डाउट है संगत कीर्तन सुनते हुए थकती है कि नहीं, क्योंकि कीर्तन की ताकत ऐसी है कि मन भरता नहीं। आप लोग कमेंट्स में लिखना कि 3 घंटे होना चाहिए, 4 घंटे होना चाहिए कि 2.5 घंटे के 2 घंटे। जो ज्यादा लिखे होंगे कमेंट्स वैसे कर लेंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, संगत क्या चाहती है और लोग क्या कहते हैं। जो संगत कहेगी वही होगा, क्योंकि संगत ही सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतोला ट्रस्ट लाइव पर भी चल रहा है, फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। किसी भी जगह पर आप कमेंट कर सकते हो। यही 2 ऑफिशियल चैनल्स हैं, अमृतोला ट्रस्ट लाइव और फेसबुक अमृतोला ट्रस्ट।
समय हो गया, फिर भी एक छोटी सी घटना ले लेते हैं जो रोज लेते हैं हम। श्री जपजी साहब जी की वडियाई, हर से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो हर पंक्ति में श्री जपजी साहब जी की वडियाई है। श्री जपजी साहब जी क्या है? मूल मंत्र की व्याख्या। मूल मंत्र क्या है? एक ओंकार की व्याख्या। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और एक ओंकार क्या है? एक ओंकार गुरु नानक पातशाह कैसे हैं? सृष्टि का मालिक। पर हमारे लिए सृष्टि का मालिक कौन है? गुरु नानक पातशाह। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, गुरु नानक पातशाह विनम्रता से कभी नहीं कहा कि मैं सृष्टि का मालिक हूँ। कहते थे मैं हुक्मी बंदा हूँ, उसके हुक्म से आया हूँ। कहने लगे हो सकता है वो जो कहें वो ठीक है, पर हमारे लिए गुरु नानक ही सृष्टि के मालिक है। पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। गुरु नानक पातशाह की वाणी ही कहती है, नानक सोदे सिमरत वेद। पार ब्रह्म उस परमात्मा और गुरु में कोई भेद नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे गुरु गुरु नानक। सारी व्याख्या सारी वडियाई गुरु नानक की है। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव ना जाने मेरा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना समय हो गया बेटा? डेढ़ नहीं, सिमरन भी हुआ है ना, 2.5 घंटे हो गए बेटा। आप खाली शब्द का टाइम बता रहे हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और श्री जपजी के साथ साहब जी के साथ पकड़ ले तो 2.25 घंटे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आज यही समाप्ति करते हैं, फिर बाकी की घटना कल लेंगे। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, ताकि संगत जुड़ी रहे। आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि कितने घंटे कीर्तन होना चाहिए समागम रोज का। गुरु नानक मेहर करे, जैसी संगत कहेगी वैसा कर लेंगे। आइए मूल मंत्र का जाप करें, फिर समाप्ति। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आपो हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ जो पर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिय चुन सत्र हमारे मारिय आप हाथ दे मुझे उभरिय मरण काल का त्रास नुवरिय हो जो सदा हमारे पछा श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रगासा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह करख करत हूँ कब मैं बिन तो दे
तर सबों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमानित महामूढ़ कछ भेद न जान महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहु रच देने कहूँ कुल राजा हब बैठा समट प्यो संतरे बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आगे काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहारो आगे ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व टोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जित कर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया मनन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे सुनते पुनीत के
ਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਬਦ ਰਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना पास बुलाने का शुक्राना दर पे बिठाने का शुक्राना तेरे दर का है शुक्राना मेरे झुके सर का है शुक्राना हंसना सिखाने का शुक्राना राह दिखाने का शुक्राना अपना बनाने का शुक्राना जीना सिखाने का शुक्राना हाथ पकड़ कर मंजिल पर हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना तेरे एहसान
पास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
जय गुरु जी की।